Good morning and welcome to Sanket Study Center. Today we are going to see fifth session of your quadrilateral, remaining sums of exercise 8.1. Up till now we have seen first four sums. Now today we are going to see next three sums. So sum number 5. What does it say? In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equals to PQ. Show that APD is congruent to CQD. AP is equals to CQ. AQB is congruent to CPB. AQ is equals to CP. And last but not the least, APCQ is a parallelogram. ठीक है, तो बहुत सारी चीज प्रूव करनी है. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, सबसे पहले जो पैरेललोग्राम दिया है उस हिसाब से ड्रॉ कीजिए. ओके, दिस इज अ पैरेललोग्राम A, B, C and D. Then you are given that on BD 2 points are lying. Which 2 points are lying? One is P and another is Q. So we have joined that, and then you have to join this with obviously A and with C. ठीक है? This is your P point. Okay? What is given to you? सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम ABCD, P and Q lies on diagonal BD. Okay, what you need to prove? 5 things you need to prove. First and foremost, which two triangles? APD, and one more thing is given. Sorry that I have forgot to write. DP is equals to PQ is given to us. ठीक है? Now see what you need to prove. APD is congruent to CQD. Second, AP equals to CQ. Third, AQB congruent to CPD. Fourth, AQ equals to CP. And last, APCQ is a parallelogram. ठीक है? Now proof step by step. क्या पहला क्या प्रूव करना है? APD congruent to CQB. तो जो ट्राइंगल दिया है प्रूव करने का उसी का कॉरेस्पॉन्डेंस देंगे. तो APD ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को? This triangle दिखा ना सबको? So in triangle APD with respect to कौन सा ट्राइंगल लेना है? CQB, this one. ओके, सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? कि both the opposite pair of sides are equal. तो can I write? Sorry, यहाँ पे रह गया CQB. Can I write AD equals to BC, opposite sides of parallelogram? Then you are given something. What is given? DP is equals to BQ is given. So DP equals to BQ given. And third, now which will be our third criteria? जब भी पैरेललोग्राम होगा, थर्ड क्राइटेरिया 6th चैप्टर से सोचना कि 6th चैप्टर से आ सकता है, एंड दैट इज ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है? और यहाँ पे अपना Z कहाँ बन रहा है? ये सी दिस दिखा Z. सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. ठीक है? सो क्या लिखेंगे? ADP is equals to CBQ, alternate pair of angles.
ओके नाउ कौन सा क्राइटेरिया बना, देखो ये एंगल है, देन ये साइड है और ये साइड है, तो साइड एंगल साइड, सो बाय SAS APD is congruent to CQB. केस नंबर 1 प्रूव, हेंस प्रूव। इसी में से केस नंबर 2 भी प्रूव होगा। देखो APD is congruent to CQB, तो क्या पूछा है, AP equals to CQ पूछा है सेकंड, तो कहाँ से करेंगे, क्या लाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles, तो बाय CPCT and I write AP is equals to CQ. This is your case number 2. Then case number 3. केस नंबर 3 के लिए आपके पास दो ट्राइंगल है AQB एंड CPD। चलो AQB और CPD के लिए see this triangle with respect to this triangle, दिखा सबको? Yes? So for correspondence या in triangle AQB with CPD, ठीक है। सबसे पहले अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, सो कैन आई से AB is equals to CD, theorem 8.2। then what next, DP is equals to BQ, देखो गिवन है DP equals to BQ, तो BQ equals to DP given। what will be my third criteria, what will be my third criteria, can I say alternate pair of angles, कहीं पे तो Z बनेगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला is a Z, ठीक है। so can I write angle ABQ is equals to angle CDP, okay, ये क्या हुआ, alternate pair of angles। again same criteria, side angle side, so by side angle side can I say AQB is congruent to CPD, and then by CPCT, मतलब ये केस खत्म हुआ, ठीक है, hence proved थर्ड केस, और फोर्थ केस इसी के CPCT से होगा, by CPCT, ठीक है, can I say कि this two lines, this two pair AQ is equals to CP, ये हुआ अपना केस नंबर 4। now very important, remember question theorem number 8.3, remember theorem 8.3 for case number 5। केस नंबर 5 में आपको क्या प्रूव करना है, पता है कि ये APCQ जो है वो पैरेललोग्राम है, और थियरम 8.3 ऐसा कहता है कि इन क्वाड्रिलेटरल इफ both the pair of opposite sides are equal then it is a parallelogram, okay। so आपकी दोनों पैर इक्वल हो गई है, देखो AP और CQ इक्वल है, आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया, ठीक है, AP और CQ इक्वल है, आपका CP एंड AQ भी इक्वल है, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया। दैट मीन्स बोथ द अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। इफ बोथ द अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, सॉरी इन क्वाड्रिलेटरल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो आपको सीधा ऐसा लिखना है कि यूजिंग थियरम 8.3 क्या क्या है, AP equals to CQ, AQ equals to CP, therefore APCQ is a parallelogram, as this is a parallelogram, ठीक है। case 5 is proved as well, note it down everyone please। sum number 6, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that
APB is congruent to CQD and then AP is equals to CQ. The most simplest sum of this entire exercise. This is the easiest one. ठीक है, तो ध्यान से देखो, आप लोगों को एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है और वो पैरेललोग्राम का नाम है ABCD. Then please stop talking, Yug Desai. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. So this is your diagonal BD. Perpendicular का मतलब क्या होता है everyone? AP CQ. Perpendicular मतलब ये क्या बनाएगा? Right angle form करता है. ठीक है? This is a right angle. Then, so first and foremost thing given. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Second, AP perpendicular to BD. CQ is also perpendicular to BD. To prove, what you need to prove? First step or your first question, APB congruent to CQD. Second उसी में से आएगा AP equals to C. तो आपके पास ट्राइंगल क्या है? APB, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, और दूसरा क्या है? दिस वन CQD. ठीक है, अब सबसे पहले प्रूफ इन APB with correspondence to CQD. सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, सो AB is equals to CD. Theorem 8.2. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नेक्स्ट, सेकंड, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? इट फॉर्म्स राइट एंगल, सो बोथ विल बी राइट एंगल. सो एंगल APB is equals to angle CQD 90 डिग्री ईच. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने प्रीवियस समय अभी आपको बताया कि ट्राई टू फाइंड आउट, अगर कोई वे नहीं मिलता है तो ट्राई टू फाइंड आउट alternate pair of angles, and we have alternate pair of angles. See this and this, दिख रहा है Z बनता हुआ, so it is your alternate pair of angles. So angle ABP is equals to angle CDQ, alternate pair of angles. Okay, now which criteria you have? You have this angle, you have this angle, and you have this side. So can you say about KSA? No. यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया आएगा? एंगल साइड. सो बाय एंगल साइड APB congruent to CQD. आपका केस 1 prove, hence prove. Okay, and what is your case 2? Case number 2, what is that? AP is equals to CQ. How we will get AP equals to CQ? By CP AP is equals to CQ. This is also done. So each and everyone are requested to note it down, please. Mark this sum as important, very very important. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and non-parallel sides are also equal, and AD is equals to BC. Prove that angle A is equals to angle B, angle C equals to angle D. Third, triangle ABC is congruent to triangle BAD, and last, diagonal AC is equals to diagonal BD. नीचे आपको हिंट दिया हुआ है, extend AB and draw a line through C parallel to BA intersecting AB produced at E. ठीक है, ध्यान से ये डायग्राम समझने की कोशिश करो पहले. ठीक है, तो ट्रेपेजियम दिया हुआ है. सो दिस इज आवर ट्रेपेजियम. यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला है कि AB
डी, ठीक है, ए बी सी डी, इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड वन मोर थिंग इज गिवन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। फिर नीचे हिंट देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा that extend AB and draw a line through C parallel to DA intersecting AB and produced at E। तो सबसे पहले इसको एक्सटेंड करना है इस तरह से और ये हो गया आपका पॉइंट E। अब आपको एक लाइन पैरेलल लेनी है C से जो E को इंटरसेक्ट करे और किससे पैरेलल होनी चाहिए, AB से पैरेलल होनी चाहिए। तो दिस टू लाइंस आर पैरेलल, ओके, ठीक है। तो व्हाट थिंग्स आर गिवन टू यू, गिवन quadrilateral ABCD is a trapezium जिसमें AB is parallel to CD, then you are given that AD is equals to BC, this is also given to us। then आपको ये जो हिंट दी है वो भी लगानी है। वो क्या प्रूव क्या करता है कि ये CE और AD जो है वो पैरेलल है, सिर्फ इतना आपको ये गिवन में लिख देना है। अब प्रूव क्या करना है, तो भाई चार चीजें प्रूव करनी है। टू प्रूव फर्स्ट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये ट्रेपेजियम के एंगल्स प्रूव करने हैं इक्वल। दूसरा क्या प्रूव करना है, ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू प्रूव इज एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, ये भी ट्रेपेजियम है। थर्ड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD और फोर्थ डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। ओके, ये चार चीज प्रूव करनी है हम लोगों को। पहले दो केस करने के लिए, ठीक है, हम लोग डायग्राम एज इट इज करते हैं, ठीक है, we are keeping the diagram as it is। so first proof A equals to B लाने के लिए ध्यान से देखना, आपको जो हिंट दी है कि E जो है एक ही लाइन में है, AB की लाइन में, ठीक है, तो instead of AB parallel to CD can I write AE parallel to CD। ये दो लाइन पैरेलल्स है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब दूसरा आपको जो हिंट दिया था उससे ये बताया गया है कि CE मस्ट बी पैरेलल टू AD। तो अब समझो कि ये वाली लाइन है ही नहीं, BC इज नॉट अवेलेबल, and these two lines are parallel and these two lines are parallel, means what, if in a quadrilateral opposite pair of sides are parallel then it is a parallelogram। therefore can I write कि AECD quadrilateral AECD is a parallelogram, ठीक है, yes or no। अब ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब एंगल D और एंगल E इक्वल हो गए। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और एंगल ये पूरा A इज इक्वल्स टू दिस एंगल पूरा C, ये इक्वल हो गए, बराबर। बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ कि जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ तो AE इक्वल्स टू CD एंड ऑब्वियसली ये आपको गिवन है AD और CE जो है मेरा इक्वल हो गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वापस ध्यान से, AD और CE पैरेललोग्राम से इक्वल हुए और AD और BC जो है, AD और BC जो है वो गिवन था, AD और BC गिवन इक्वल था और AD और CE जो है वो पैरेललोग्राम से इक्वल हुए। यूजिंग एक्सियोम नंबर 1 ऑफ यूक्लिड, things which are equal to the same thing are equals to one another, then can I say if AD equals to CE and AD equals to BC, BC is equals to CE, yes or no। ये दो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, yes और no, yes। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल BEC दिख रहा है आप लोगों को, BEC बराबर, उसमें आपके पास दो साइड इक्वल हो गई, BC इज इक्वल्स टू CE
ई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थियरम 7.2, इफ अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल then opposite pair of sides are also equal. So if opposite sides are equal, opposite angles are equal. So इसमें कौन सा एंगल आएगा? BC का opposite एंगल क्या आएगा? एंगल BEC, ठीक है। एंड ये क्या होगा? एंगल CBE, ठीक है, ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? सम ऑफ द एंगल्स आर 180। ट्रायंगल में, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो 180 है। और ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल्स को, आर दे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? बराबर है, बराबर, यस और नो? यस। तो मैं पहले इन तीनों की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि अगर दो लाइन इस तरह से पैरेलल होती है, बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल से ये दोनों क्या होंगे? 180 होंगे, यस और नो? यस। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एज AECB is a parallelogram, can I say angle A plus angle E, ठीक है, is equals to 180, interior pair of angles। और यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, एंगल ABC प्लस एंगल EBC is equals to 180 डिग्री, यस और नो? बराबर है। अब ध्यान से देखना, ये किस लिए आया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। अब ये भी 180 है, ये भी 180 है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। सो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल ABC, ABC मतलब पूरा B, ये साइड वाला, प्लस एंगल EBC। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला E जो है ये इसके साथ इक्वल है EBC के साथ, बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो मैं ये बड़ा वाला जो E है उसकी जगह क्या लिख रहा हूँ? EBC, क्यों? बोथ ऑफ देम आर इक्वल। एंड यहाँ पे ये ABC मतलब मेरा B हो गया एंगल B, और ये हो गया आपका EBC जो था वही का वही। अब दोनों साइड देखो, EBC EBC है, दैट मींस दे विल बी कैंसल्ड आउट। तो EBC EBC कैंसल, तो क्या बचा? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, हेंस प्रूव केस नंबर 1, ओके। केस नंबर 1 ये प्रूव हुआ। अब ये ट्रेपेजियम है, ध्यान से देखना, केस नंबर 2 के लिए ये ट्रेपेजियम है, ये दो लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो A प्लस B क्या होगा? 180, क्यों? इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और मेरा B प्लस CB क्या होगा? 180, क्यों? लिखने का, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। मीन्स ये भी 180, ये भी 180, ठीक है। तो कैन आई राइट A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस C। नाउ वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि A इज इक्वल्स टू B, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, तो बचा क्या? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, केस नंबर 2 हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब थर्ड क्राइटेरिया देखिए, थर्ड केस, और उसी में फोर्थ केस भी आ जाएगा। केस नंबर 3 क्या प्रूव करना है? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। अब अपने पास ABC है लेकिन CA को ज्वाइन नहीं किया है, ट्राइंगल तो 3 साइड से बनता है ना, तो ABC
और दूसरा क्या है BAD, ठीक है, दो ट्राइंगल्स दिखे। अब वही हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC वर्सेस ट्राइंगल BAD, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको AB इक्वल्स टू BA क्या देखने को मिलेगा, कॉमन। फिर क्या देखने को मिलेगा, एंगल ABC, और ये देखो ABC में पूरा B आ रहा है और BAD में पूरा A आ रहा है। तो कैन आई राइट दैट, क्यों कैन आई राइट दैट, बिकॉज ये हम लोगों ने प्रूव किया है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। दैट्स व्हाई मैं लिखूंगा एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD, प्रूवन। एंड थर्ड क्राइटेरिया क्या है, ये देखो AD और BC आपको इक्वल दिया हुआ है इन गिवन, कहाँ गया, AD इज इक्वल्स टू BC, तो यहाँ पे लिखूंगा BC इज इक्वल्स टू AD गिवन। अब क्या क्राइटेरिया बना, ऑब्वियसली साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD, ये हुआ मेरा हेंस प्रूव्ड केस नंबर 3। एंड देन बाय CPCT कैन आई से AC इज इक्वल्स टू BD, case number 4 hence proved. So this is the end of your session number 5 of quadrilaterals. If you have gone through this video, please do like, share, comment, and don't forget to subscribe, and please press that bell icon. Thank you very much.